آپ کو بتائیں ہنگامہ آرائی واقعات پنجاب حکومت کا تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا فیصلہ۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ GIT واقعات کی تحقیقات کر کے جامع رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ اجلاس میں تمام شرپسندوں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شرپسند عناصر عبرتناک سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو پنجاب حکومت کا تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کیا گیا ہے۔ GIT واقعات کے تحقیقات کر کے جامعہ رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ اجلاس میں تمام شرپسندوں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے مہنگائی نے عام آدمی کے لیے روٹی کا حصول بھی مشکل بنا دیا۔ روٹی اور نان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ جہانے میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1160 روپے میں فروخت ہونے لگا، جبکہ گندم 3900 کی بجائے 4500 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ روٹی اور نان مہنگا ہونے سے شہری کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں امجد حسین بٹر کی رپورٹ۔ جہانیہ میں روٹی اور نان کی قیمت بڑھنے سے شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ حکومت نے گندم کا سرکاری ریٹ 3900 روپے فی من مقرر کیا تھا، مگر محکمہ فوڈ کا عملہ ٹارگٹ پورا کرنے کی بجائے کمیشن لے کر فلور ملز کو گندم فراہم کر رہا ہے۔ فلور ملز کو گندم 4500 روپے فی من مہیا کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جہانیہ میں آٹا، نان اور روٹی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس وقت 15 روپے والا نان 25 روپے اور کم وزن والی روٹی 10 روپے کی بجائے 20 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1160 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ نان پہلے تو ہمیں 15 روپے کا مل جاتا تھا، اب نان کا ریٹ 25 روپے کر دیا ہے۔ روٹی جو ہے نا وہ بھی 10 روپے کی مل جاتی تھی، اب وہ بھی اس کا ریٹ بھی بڑھا دیا، 20 روپے کر دیا ہے۔ آٹے کا تھیلا جو ہے نا وہ بھی مطلب پہلے تو کنٹرول پرائس پہ مل جاتا تھا، اب اس کا ریٹ بھی 1160 روپے کر دیا ہے۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جو ہے نا آٹے کا ریٹ تو کم کر دیا جائے تاکہ شہریوں کے لیے روٹی کھانا تو آسان ہو جائے۔ شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ گندم اور آٹا کی قیمتوں کو فوری کنٹرول کیا جائے، ورنہ گزشتہ سیزن کی طرح اس مرتبہ بھی گندم اور آٹا کا شدید بحران پیدا ہو جائے گا۔ امجد حسین بٹر، روہی نیوز، جہانیہ۔ آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر سلیمان خان لودھی نے مظفر گڑھ اور کوٹ ادو اضلاع میں تمام واٹر پلانٹس کو مکمل فعال کرنے کی ہدایت کر دی۔ دونوں اضلاع میں 137 واٹر پلانٹس ہیں، جن میں سے 97 فعال جبکہ 40 بالکل لاکارہ ہو چکے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ پینے کا صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے مختلف امراض پھیلنے لگے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جلد فعال کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر کی رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سلمان خان لودھی کا اہم اقدام۔ مظفر گڑھ اور کوٹ ادو اضلاع میں نصب تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس کو 20 مئی تک فعال کرنے کی ہدایت جاری۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی واضح ہدایت ہیں کہ غیر فعال واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فوری طور پر بحال کیا جائے اور ان کو مستقبل میں فعال رکھنے کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ شہریوں نے کہا کہ جلد سے جلد مرمت کا کام مکمل کیا جائے۔ بڑا سنگین مسئلہ ہے، یہ پورے شہر کا مسئلہ ہے، یہ بہت مشکل ہوتی ہے ہمیں۔ ڈی سی صاحب کا یہ اچھا خوشائند قدم ہے کہ 40 واٹر پلانٹ جو ہیں انہوں نے چالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس یہی اچھے کی امید کرتے ہیں اور آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ کافی ٹائم سے یہ بند پڑے تھے۔ یہ ڈی سی صاحب کا ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا ہمارے ساتھ۔ مظفر گڑھ اور کوٹ ادو اضلاع میں مجموعی طور پر 137 واٹر فلٹریشن پلانٹس نصب ہیں، جن میں سے 97 فعال ہیں۔ دونوں اضلاع میں 40 واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال و خراب ہیں۔ ان میں سے 26 واٹر فلٹریشن پلانٹس ضلع کونسل، 7 محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور 7 میونسپل کارپوریشن کے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ مس انم حفیظ کا کہ ان کی زیر پرستی مظفر گڑھ کے اندر ایک ماسٹر واٹر اینڈ سینیٹیشن کا ماسٹر پلان بنایا جا رہا ہے، کیونکہ صاف پانی، سینیٹیشن کی سہولیات اور صحت و صفائی کی سہولیات ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اور اس ماسٹر پلان کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس مل کے بیٹھیں، NGOs مل کے بیٹھیں اور اس مظفر گڑھ کے اندر دیکھیں کہ ہماری اس وقت کیا سچویشن ہے اور اگلے 10 سال کے اندر ہم لوگوں کو صاف پینے کا پانی، سینیٹیشن اور صحت و صفائی کی سہولیات کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف امراض میں مبتلا ہیں۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر کے اقدامات خوش آئند ہیں۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ اب آپ کو بتائیں ملتان میں انتظامیہ نے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کو فری ہینڈز دے دیا۔ پارکنگ مافیا شہر میں کھلے عام عوام کی جیبیں خالی کرنے میں مصروف۔ مہنگائی کے مارے شہری بھی پارکنگ مافیا کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اون عباس کی اس رپورٹ میں۔ ملتان شہر میں پارکنگ مافیا بے لگام، میونسپل کارپوریشن کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ میونسپل کارپوریشن نے موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 10 روپے مقرر کی، جبکہ شہر میں موٹر سائیکل کی ٹوکن فیس 30 روپے لی جانے لگی۔ شہر کے تمام سرکاری اور نجی ہسپتالوں کے باہر بھی پارکنگ مافیا اوور چارجنگ کرنے لگا۔ شہر
शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की मिली भगत से ही पार्किंग माफिया अवाम को लूट रहा है। 30 रुपए लिए जा रहे हैं जबकि 10 रुपए चार्जेस हैं, और मैं अपने पेशेंट को लेके आया हूँ और मैं धूप में खड़ा हूँ। परेशान होते हैं, 3-3 घंटे रुक जाते हैं, ट्रैफिक जाम होती है, गाड़ियाँ रास्ते में रुकी रहती हैं, कोई दरम बरम है, काम जो है ना सही नहीं है। ये जिला कचहरी के बाहर भी पार्किंग माफिया साइलिन की जेबें खाली करने में मसरूफ दिखाई दिया। मुखला ने मुतालबा किया कि जिलाई इंतजामिया गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड पर मौजूद भत्ता माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। जिला कचहरी है, इसमें वकला को, लिटिगेंट्स को और आम शहरियों को इस कदर मुश्किलात का सामना है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और अगर ये गैर कानूनी पार्किंग ना हो तो आप यकीन जानिए कि इस वक्त इस शहर की ये सूरत हाल ऐसी ना हो जो इस वक्त बिगड़ी हुई नजर आ रही है। इंतजामिया इसमें ये इनको रोकने की बजाय इन्हें प्रमोट करती है, वो खुद इनको प्रोटेक्शन देती है। ये जगह जगह बाहर पार्किंग बनी हुई है, प्लस ये जिला इंतजामिया के बगैर यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग मंजूर नहीं हो सकती और बन नहीं सकती। ला ये है कि जहाँ भी कोई बिल्डिंग बनेगी उसको पहले उसे पार्किंग देनी होगी। पार्किंग माफिया, पहली बात है कि पार्किंग माफिया मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि अगर कोई चार्ज कर रहा है, ख़ास तौर पे जिसकी बिल्डिंग है, जिसकी बेसमेंट है, तो वो एक फैसिलिटी सहूलत दे रहा है, उसको थोड़ा सा रेगुलाइज करने की जरूरत है। कॉर्पोरेशन रूल के मुताबिक किसी भी जगह नीलामी के बगैर पार्किंग स्टैंड पर चार्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे में इंतजामिया ने अजब मौकिफ अपनाया कि सर्विस के बदले पार्किंग स्टैंड पर चार्ज किया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा साथी रिपोर्टर महार इमरान और हसन मलिक के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। और अब आपको बताएंगे मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज 3 दिन बंद रहने से ऑनलाइन वर्कर्स का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। चौथे रोज इंटरनेट बहाल कर दिया गया। इसके बावजूद सार्फिन को इंटरनेट सर्विसेज के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़े शहरी परेशान हैं। इस हवाले से देखते हैं मुल्तान से शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मोबाइल इंटरनेट सर्विस की बंदिश के ई कॉमर्स पर मनफी असरात। 3 दिन में टेलीकॉम कंपनियों को करोड़ों जबकि ऑनलाइन वर्कर्स को लाखों का नुकसान हुआ। मुल्तान शहर के फ्रीलांसर्स का कहना था कि इन दिनों बिजनेस की आलमी वेबसाइट्स पर पाकिस्तान की रैंकिंग डाउन हुई है। हम अपने लिए खुद वसाइल पैदा कर रहे हैं, हम एक काम कर रहे हैं, तो अगर नेट बंद किया जाता है तो उसमें एक तो मुल्क की माशियत को भी नुकसान है कि हम बाहर से डॉलर लेके आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एक तो उसको भी नुकसान है, दूसरा हमारा भी नुकसान है कि हम जो उसमें काम कर रहे हैं उसमें गैप आ जाता है। ई कॉमर्स से मुंसलिक इंटरनेट सार्फिन ने कहा कि इंटरनेट अब हर शहरी का बुनियादी हक है। इंटरनेट बंद करना ऑनलाइन वर्कर्स का मुआशी कत्ल है। हमारा बिजनेस भी मुतासर हुआ है। हम जो पैसेंजर्स को डील करते हैं उनको हम फेयर नहीं बता सके, उनके टिकट इन टाइम इशू नहीं कर सके, बाद सूरतों में फेयर भी बढ़ गया है। और तीसरी बात यह है कि हमारा कम्युनिकेशन नहीं रहा हमारे एयरलाइंस के साथ, हमारे कस्टमर के साथ, जो कि अक्सर औकात हमारा व्हाट्सएप पे होता है या इंटरनेट पे होता है। इंटरनेट बंद करने जैसे हुकूमती फैसले मुल्क की डिजिटल तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मोबाइल इंटरनेट के मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस्लामाबाद धरने में शिरकत का ऐलान। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सऊद मजीद कहते हैं कि पीडीएम सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना और रैली कर रही है। मुस्लिम लीग बहावलपुर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। हम काफिले लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। रैली का मकसद सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बढ़ाना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जानिबदाराना फैसले का एहसास दिलवाना है। मजीद जानते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद धरने रैली में शिरकत के लिए सरगर्म। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सऊद मजीद का कहना था कि इस्लामाबाद में पीडीएम की रैली और धरने को कामयाब बनाएंगे। उम्मीद है शाहराए दस्तूर पर पहुंचने का कहा जाएगा, वहां पहुंचेंगे। मजीद पीडीएम रहनुमाओं की मुलाकात में टाइम टू टाइम प्लानिंग बनती रहेगी। जी मुस्लिम लीग नून ड्यूटीज लगा रही है अभी, और आज ही हमें इतलाएं आ जाएंगी कि हमने परसों किस वक्त पहुंचना है और कहां पे पहुंचना है। जो जगह मुतय्यन करेंगे हम वहीं पे, और उम्मीद तो है ये सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू ही हमें कहा जाएगा, क्योंकि इधर उधर से इकट्ठे होकर जाना एक मसला बन जाता है। तो उसके मुताबिक हर शहर से इंशाल्लाह लोग अपने दोस्तों को लेके वहां पे पहुंचेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सऊद मजीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को लाडला बनाया हुआ है। अवामी एहतजाज और धरने में सुप्रीम कोर्ट को जानिबदाराना फैसले का एहसास दिलवाना है। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो फैसले कर रहे हैं, आप जो लाडलापन कर रहे हैं, इसको ख़त्म करें, कानून के मुताबिक फैसले दें। आपने तो जो आपका काम भी नहीं था, आपने तो आइन को भी रीराइट कर दिया जो कि आप कर नहीं सकते। तो आप ये हरकतें छोड़ें, उनके ऊपर एक एहतजाज हमारा अवामी एहतजाज होगा।
सऊद मजीद का कहना था कि पीटीआई या कोई और ये न समझे कि रैली का मकसद आने वाले फैसलों बारे सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर बढ़ाना है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, लिया में सरकारी दफ्तर से चोरी की अनोखी वारदात। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से 8000 से ज्यादा फाइलें चोरी। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी कायम, मुकदमा के इंदराज के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाहिद सरफराज रिपोर्ट करेंगे। लिया के सरकारी दफातर से फाइलें चोरी होने लगी। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से 8150 फाइलें चोरी कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज डोमिसाइल ब्रांच मोहम्मद आजम समेत 5 एहलकारों को फौरी तब्दील करके मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुबारक अली रजा का कहना था कि वाकया ईद की छुट्टियों के दौरान पेश आया, मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। जो ईद की छुट्टियां थी उसमें कुछ डोमिसाइल की फाइल जो हैं, हमारे पास पेरेंट फाइल होती है, उसमें इंकशाफ हुआ कि वो मिसप्लेस हो गई हैं। क्योंकि वो रिकॉर्ड तो सारा का सारा ऑनलाइन है, तो ऐसा कोई उसमें प्राइवेट पर्सन का फ़ायदा या इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आती। तो इसलिए हमने फिर डीसी साहब को लिखा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो हैं कि इन पे एक्शन लिया जाए। डीसी साहब ने इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, मामला इंक्वायर कर रहे हैं। होपफुली वो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक में ये फाइनलाइज हो जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाने में दरख्वास्त गुजारी गई थी कि इन पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो एहलकार हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं। तो उन्होंने फिर यही कहा कि आप पहले इंक्वायरी मुकम्मल कर लें, कंक्लूड कर लें, उसके बाद फिर वो हम फर्दर एक्शन लेंगे। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने फाइलें चोरी होने का नोटिस लेते हुए GAR सैफुर रहमान को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही लिया। अब आपको पता है, रहीम यार खान में कपास की काश्त 30 मई तक जारी रहेगी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इकरार हुसैन ने बताया कि रवां साल कपास की फसल बहुत अच्छी होगी, किसान को फायदा होगा और मुल्क खुशहाल होगा। 2023 को कपास के साल के तौर पर मनाया जाएगा। मजीद तफसीलात आमिर भट्टी की रिपोर्ट में। रहीम यार खान में कपास की काश्त 30 मई तक जारी रहेगी। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन ने बताया कि कपास की काश्त का हदफ 6,39,000 एकड़ है, जबकि 3,91,000 एकड़ पर बुवाई मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसान सब्सिडी का बीज इस्तेमाल करें। कपास उगने के 20 से 25 दिन बाद इसकी छिदराई की जाए। रवां साल हुकूमत ने कपास की फी मन कीमत 8500 रुपए मुकर्रर की है। महकमा ज़राअत की टीमें किसानों को फसल की बीमारियों से मुतालिक आगाही दे रही हैं। देखिए, हमारा टारगेट जो है वो 6,39,000 एकड़ है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां का। और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां को कपास के में एक ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ जो बीज पैदा होता है वो ना सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध में भी इधर से जाता है, बलूचिस्तान में जाता है। तो हमने अभी तक जो है वो 3,91,000 एकड़ पर कपास काश्त कर ली है, जो टोटल टारगेट का 61% बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से हम 17% जो है वो आगे हैं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन का मजीद कहना था कि रवां बरस को कपास के साल के तौर पर मनाया जाएगा। हर तरफ कपास उगेगी, किसान अच्छी फसल से फायदा उठाएंगे और मुल्क खुशहाल होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रिहाड़ी में इत्तेहाद रिक्शा यूनियन का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। इत्तेहाद रिक्शा यूनियन की तरफ से वी चौक से रैली निकाली गई। चेयरमैन इत्तेहाद रिक्शा यूनियन राना फखरुल इस्लाम ने रैली की क़यादत की। रैली का अहवाल जानते हैं हाफिज अली मोहम्मद की रिपोर्ट में। विहाड़ी में इत्तेहाद रक्षा यूनियन का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। इत्तेहाद रक्षा यूनियन की तरफ से पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। चेयरमैन रक्षा यूनियन राना फखरुल इस्लाम ने रैली की क़यादत की। रैली से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, मगर चंद शरपसंद अनासर अपने जाती मफाद के लिए पाक फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। ये जो 3-4 दिन से पाक आर्मी के खिलाफ एक गलत प्रोपोगंडा किया जा रहा है, सिर्फ उसको जाहिल करने के लिए हम पाक आर्मी के साथ अजहर यकजहती निकाल रहे हैं कि यार पाकिस्तान आर्मी हमारी ही फौज है, उसमें हमारे ही बहन भाई हैं, कोई बुजुर्ग है, हमारे ही जवान हैं जो बॉर्डरों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। मैं फिर पाकिस्तानी अवाम से, सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करूंगा, वोट जिसको मर्जी दो, पाक फौज को इज्जत दो। सदर इत्तेहाद रक्षा यूनियन चौधरी मोहम्मद शबीर ने कहा कि हमारी अफवाज ने हमेशा दुश्मनों को सीना तान कर भरपूर जवाब दिया। पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और इसकी आबरू के लिए अपनी जानों के नजराने भी पेश करने से दरेग नहीं करेंगे। आज हम फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए एक रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से जो है ना पाक फौज के खिलाफ बहुत प्रोपगंडा चल रहा है। हम इन लोगों को बताना चाहते हैं कि हम पाक आर्मी के साथ शाना बिशाना खड़े हैं।
रैली वी चौक से शुरू होकर कायदे आजम चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने पाक अफवाज के हक में नारेबाजी भी की। कैमरा टीम के साथ हाफिज सालिम मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। अपनों को याद रखने का आज़्म। बहावलपुर डिवीजन के मशहूर शख्सियात को इनके आबाई कॉलेजेस की तरफ से खराज तहसीन पेश किया गया। हायर एजुकेशन की तरफ से हर शहर के नामवर कॉलेजेस में वॉल ऑफ प्राइड काम की जाएगी। ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर डिवीजन की तारीखी दरसगाहों से पढ़कर जाने वालों ने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाला है। अब इन शख्सियात के आबाई कॉलेजेस में इनके नाम से वॉल ऑफ प्राइड कायम की जाएगी। डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना था कि एतजाज एहसन, अहमद नदीम कासमी, अल्ताफ खान बलोच जैसी शख्सियात इन कॉलेजेस से फारिगुल तहसील हैं। अल्ताफ खान बलोच साहब ने जब से सेक्रेटरी साउथ पंजाब हायर एजुकेशन का ओहदा संभाला है, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं और एक तो ये है कि वो कॉलेज लेवल्स पर आकर खुद विजिट भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा स्टेप उनका था वॉल ऑफ प्राइड का, कि हर जो बड़ा वेल नोन बड़ा कॉलेज है उसके अंदर से जितने फारिग तहसील वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं उनको वॉल ऑफ प्राइड के अंदर दर्ज किया जाए, उनकी फ़ोटोज़ लगाए जाएँ ताकि बच्चों के अंदर मोटिवेशन पैदा हो और उनको पता चले कि उनके अदारे ने कितने कितने बड़े नाम पैदा किए। बहावलपुर की दरसगाहों ने अहम सियासी, मजहबी रहनुमा और ब्यूरोक्रेट पैदा किए हैं। इन तारीखी दरसगाहों से जुड़े असातिज़ा कराम भी इस कदम से खुश हैं। इनका कहना था कि कॉलेजेस में मशहूर शख्सियात के नाम चस्पा करने से तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई होगी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की तरफ से जो वॉल ऑफ प्राइड का फैसला किया गया है हर कॉलेज में बनाने के लिए, तो ये वहाँ के तालिब इल्मों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि वो उन बड़ी शख्सियात, बड़े नामों को देखकर उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा होगा कि हम भी इन जैसे बनने की कोशिश करें। डायरेक्टर कॉलेज का कहना था कि बहावलपुर शहर की कदीम मादर इल्मी सादिक एडजर्टेंट कॉलेज में इतनी नामवर कौमी शख्सियात हैं कि इनके लिए कमेटी बिठाना पड़ी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं, जामपुर के मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा मुहिब शाह में पुरवकार तकरीब 7 रोज़ा फ़िज़ा नमाज कोर्स मुकम्मल कराने वाले तुलबा को इस्नाह तकसीम की गई। 7 रोज़ा फ़िज़ा रमज़ान को कोर्स में 21 बच्चों ने हिस्सा लिया। वज़ू, नमाज और गुस्ल के मसाइल बताए गए। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखेंगे। दावत इस्लामी बच्चों को नमाज का आदी बनाने के लिए कोशा। जामा मस्जिद अल्लाह वाली के मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा में 7 रोज़ा फैज़ान नमाज कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में असनाद तकसीम की गई। कारी खलील अहमद करीमी का कहना था कि बच्चों को नमाज का आदी बनाना दावत इस्लामी का ऐसा इक़दाम है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि ये बुनियादी मसाइल बच्चों को सिखाए जाते हैं जो कि नमाज और गुस्ल के फ़राइज़ वगैरह जो कि मतलब ज़रूरी हैं। जामा मस्जिद अल्लाह वाली के मोहतरम का कहना था कि 7 रोज़ा फैज़ान नमाज कोर्स में 21 बच्चों ने हिस्सा लिया। वज़ू, नमाज और गुस्ल से मुतालिक भी बताया गया। तमाम जो मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी उन्होंने बच्चों को सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने सीखा है और अल्लाह पाक उनको अमल की तौफीक अता फरमाए। इम्तिहान पास करने वाले तलबा का कहना था कि 7 रोज़ा कोर्स में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बड़ों का अदब करने का और खाने का तरीका और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उम्र भर इसी तरह ज़िंदगी भर इल्म हासिल करने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के अगले जितने भी मदनी काफ़िले आएंगे इंशाअल्लाह हम उसमें जाने की कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते से जो कोर्स जारी हुए हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा मुहिब शाह में मुनक्कदा तकरीब में जहां बच्चों ने हिस्सा लिया, वहीं उनके वालिदैन भी इस तकरीब में शरीक हुए। बच्चों के वालिदैन ने इस जैसे प्रोग्राम, दावत इस्लामी के प्रोग्राम को खूब सराहा। उनका कहना था कि इस जैसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हम इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए आगे भी कुछ कर सकें। साथ ही कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।